Dr. Joshi, Srimati Amita Devji, Professor Ravi Prakash Tekchandani जी, अनिल जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन। मैं जब अपने से पूर्व वक्ताओं की बातें सुन रही थी तो मेरा मन अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। संघर्ष और बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो उन लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनशीलता का परिचायक बने। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विभाजन पर आधारित एक श्रृंखला को शामिल करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत देश के प्रमुख शहरों में विभाजन से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की गई। संसद भवन की लाइब्रेरी समेत पूरे देश में विभाजन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसको हर तरफ सराहा गया। इसके साथ ही विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के सहयोग से देश भर में सार्वजनिक व्याख्यान और सेमिनार आयोजित किए गए। इस वर्ष भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में प्रदर्शनियों, बौद्धिक प्रवचन, ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण आदि के जरिए पूरे देश को त्रासदी की विभीषिका से परिचित करवा रहा है कि आज जिस आजादी को हम जी रहे हैं, उस आजादी के लिए हमारे लोगों ने एक बड़ी कीमत चुकाई थी। आज का कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय सिंधी भाषा परिषद, विकास परिषद के सहयोग से आयोजित कर रहा है। हम जनपद संपदा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के अनिल कुमार को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो अपने स्वागत भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रोफेसर के अनिल कुमार। हाँ, लिखा तो नहीं हुआ है। अच्छा, Good evening, everyone. Welcome you all to this book launch program. As you are aware that Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji declared 14th of August annually as a Partition Horrors Remembrance Day to remind the nation of the sufferings and sacrifices of Indians during the partition in 1947. In this regard, Ministry of Culture, Government of India has entrusted the responsibility of organizing programs, academic discourses, seminars, events, and the film screening in remembrance of tragedy of partition of India. IGNCA and National Council of Promotion of Sindhi Language on the occasion of Partition Horrors Remembrance Day, releasing a book titled Revisiting Partition, Tales of Displacement, Horrors, Negotiations and Reconciliations, edited by Dr. Sachidanand Joshi ji and Dr. Ravi Prakash Tekchandani ji. On this occasion, today, we have with us Srimati Meenakshi Lekhi ji, Honorable Union Minister of State for External Affairs and Culture as the chief guest, and Dr. Amita Devji, Vice Chancellor, Indira Gandhi, Delhi Technical University for Women, as the guest of honors to release this book. On behalf of IGNCA, Ministry of Culture, Government of India, I take this opportunity to extend warm welcome to our chief guest, Srimati Meenakshi Lekhi ji, and guest of honor, Dr. Amita Devji. I welcome you, madam. I am delighted to welcome our book editors, Dr. Sachidanand Joshi ji, Member Secretary IGNCA, and Dr. Ravi Prakash Tekchandani ji, Director NCPL, for their excellent book, which is absolutely timely and urgent. Looking at the partition horrors is to reflect back
the great sacrifices of the people of India have made in their making this great nation. Please give them a round of applause. I welcome all the authors who have contributed papers for this book, and we feel incredibly honored to have you here with us on this occasion. Please give a upper and round of applause. तालियां बजाइए उनके लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये लोग स्टोरीज कलेक्ट करके इस बुक में ये लोग लाए हैं. I welcome our director IGNCA, Dean, HODs, media people and IGNCA fraternity for taking a keen part in this program. Well, I don't want to take too much of time of yours. I welcome you all once again. Thank you one and all. Thank you so much. धन्यवाद सर. हम जब भी आजादी का जश्न मनाने बैठते हैं, बंटवारे का दर्द उभर आता है. ये सब जानने और समझने के बाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में देश को महसूस करवाया कि यदि इन दर्द को दिलों से निकालना है तो इस पर बात करनी होगी, नहीं तो ये नासूर कभी ठीक नहीं होंगे. माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में स्पष्ट किया था, यह आयोजन समारोह नहीं, स्मृति समारोह होंगे, जिनका उद्देश्य व्यापक जनभागीदारी तथा विभाजन की त्रासदी का दस्तावेजीकरण होगा. इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, एवं श्री रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, निदेशक राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद द्वारा उक्त कार्यक्रम के दौरान आयोजित सभी सेमिनारों से एकत्र किए गए सर्वोत्तम शोध पत्रों को संकलित एवं संपादित कर एक पुस्तक का रूप दिया गया, जिसका शीर्षक दिया गया रिविजिटिंग पार्टीशन, विस्थापन एवं समझौते की कहानियां, जिसका आज माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर मीनाक्षी लेखी जी एवं डॉक्टर अमिता देव, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हाथों विमोचन होना है. मैं अनुरोध करती हूँ कि पुस्तक को विमोचन हेतु लाया जाए. आजादी का अमृत महोत्सव सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार इस पुस्तक को देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. उस प्रदर्शनी को भी एक पुस्तक के रूप में तैयार किया गया है. बरसों से तारीख का ये पन्ना हजारों लाखों घरों में जिंदा रहा है. तकलीफ का वो दौर तमाम इंसानों के दिल पे ठिकाना बनाए हुए है. बंटवारे का दर्द झेलने वालों ने हजार बार ये किस्से और आप बीती अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, जानने वालों को सुनाया होगा. उस दर्द को बार बार बताकर बंटवारे के शिकार लोगों ने अपना दर्द कम करने की कोशिश की होगी. उन्होंने अपने तजुर्बे बांटकर बताया होगा कि उस वक्त कैसे उन्हें अपना वतन और अपना घर बार बंटवारे की वजह से गंवाना पड़ा. आखिर इन कहानियों को अब तक तवज्जो क्यों नहीं दी गई? क्या वो बंटवारे आजादी की तारीख का हिस्सा नहीं है? क्या हम उनकी इसलिए अनदेखी करते हैं कि इस इतिहास के तमाम किरदार आज भी जिंदा हैं? इन सवालों के जवाब तलाशना इतना आसान नहीं, मगर शायद इतना मुश्किल भी नहीं. ऐसे ही कई सवालों और जवाबों का जिक्र इस पुस्तक में होगा. हम आग्रह करना चाहेंगे पुस्तक के संपादक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से कि वो इस पर अपने विचार साझा करें. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और नेशनल काउंसिल फॉर सिंधी प्रमोशन लैंग्वेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी,
इंदिरा तकनीकी विश्वविद्यालय फॉर विमेन की माननीय कुलपति प्रोफेसर अमिता देव जी, मेरे साथ इस पुस्तक के सह संपादक प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, मेरे सहयोगी प्रोफेसर अनिल कुमार जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान सम्मानीय देवियों सज्जनों। जब 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त को स्मरण करने की बात कही थी, तब उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट था कि विभाजन की त्रासदी के बारे में आगे आने वाली पीढ़ी भी जाने और समझे। संभवतः इतिहास का सबसे बड़ा मानव संहार और आबादी का सबसे बड़ा विस्थापन जो कि भारत की आज़ादी के बाद हुआ, वो विश्व के इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हुआ। इससे तुलनात्मक रूप से छोटी त्रासदियां विश्व के इतिहास में दर्ज हुई और उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी और पढ़ी गई, लेकिन अन्य राजनीतिक कारणों से इस विभाजन की विभीषिका के बारे में बहुत अधिक चर्चा भारत में करना मुनासिब नहीं समझा गया। जबकि वास्तविकता ये है कि इस विभाजन की विभीषिका के कारण जिन लोगों ने अपने जीवन की बहुत अधिक यातनाएं और त्रासदी भोगी है, उनको कहीं न कहीं अपनी अभिव्यक्ति का स्थान मिलना चाहिए था। वे स्मृतियां जो इस विभाजन के दौरान उनके मन में अंकित हैं, उसको कहीं न कहीं स्वर भी मिलना चाहिए था। ऐसे कुछ प्रयास व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने किए, कुछ संस्थाओं ने भी किए, जिसमें विभाजन की त्रासदी के संबंध में कुछ बातें डॉक्यूमेंट की गई, लिखा गया। लेकिन एक तरह का संस्थागत प्रयास जिसमें ये महसूस हो कि भारत की पूरी जनता इस विभाजन की विभीषिका से कहीं न कहीं अपने आप को जोड़ती है और अपने आप को कहीं न कहीं उसके साथ सहानुभूति प्रदर्शित करती है, ऐसी कोई गतिविधि इतने वर्षों में नहीं हुई थी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा और दृष्टि थी कि जब हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाएं, यानी जब हम अमृत काल में प्रवेश करें, तो कम से कम युवा पीढ़ी इस बात को जरूर जाने कि भारत ने ये आज़ादी किस तरह के बलिदान देकर, किस तरह के लोगों का त्याग देखकर प्राप्त की है, ताकि जब हम भारत का नव निर्माण करें तो कम से कम हमें इस बात का स्मरण रहे, एहसास रहे। पिछले साल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजनों का दायित्व भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सौंपा गया था और इस संबंध में कला केंद्र द्वारा और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पूरे देश में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, सेमिनार का आयोजन किया गया और इसके साथ ही संगोष्ठियों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर हुआ। हमने कुछ फिल्में भी युवा फिल्म निर्देशकों से बनवाई, फिल्म की प्रतियोगिता भी की और हमने देखा कि कैसे ये जो युवा फिल्म निर्देशक हैं अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से विभाजन की विभीषिका को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के संस्मरण भी रिकॉर्ड किए गए जो उस त्रासदी से गुजरे हैं। कुछ संस्मरण ऐसे भी लोगों के रिकॉर्ड किए गए जो उस त्रासदी से गुजरे हुए लोगों की अगली पीढ़ी हैं या उससे अगली पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि उनके पास अपने पूर्वजों की ऐसी धरोहरें थी जिन्हें देखकर कहीं न कहीं आपके मन में स्पंदन होता है, आपको एक अजीब सी चेतना कहीं न कहीं झकझोर देती है। आप देखें किसी की वो सूटकेस, किसी की संदूक, वो होल्डाल जो विभाजन के समय लाए थे, किसी के हाथ, किसी के पास की दरी, या कुछ लोगों ने तो सिर्फ ताले जो उन्होंने अपने घर में लगा के रखे थे या सिर्फ चाबी संजो के रखी थी 75 साल बाद भी, कि कभी न कभी मुझे वो ताला फिर से खोलने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी अनेकों बातें जो हमारी संवेदना को झकझोरती है कहीं न कहीं स्मृतियों में थी। इसलिए हमने एक वेबसाइट का भी निर्माण किया जिस वेबसाइट में ये सारी बातें दर्ज हो सके। हर एक व्यक्ति की आयु की एक सीमा है। हम जानते हैं आज 75 वर्ष होने के बाद वे लोग जिन्होंने विभाजन देखा है आज उम्र के 85, 90, 92 के दौर में होंगे। आज सुबह एक कार्यक्रम में सरदार त्रिलोचन सिंह जी उपस्थित थे, उनकी उम्र 96 साल है, लेकिन जज्बा अभी भी बरकरार है। ऐसे लोग हमारे समाज में हम लोगों के लिए प्रेरणा है, हमें दिशा देते हैं। तो इन सभी लोगों के संस्मरणों को संजो के रखना, उनकी बातों को ध्यान में रखना, ये भी हमारा परम कर्तव्य था। ये भी हमने कहीं न कहीं किया। इस सब के साथ इस पुस्तक की योजना भी बनी जिसका आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। ये देखा गया कि ऐसे कई शोधार्थी हैं जिन्होंने विभाजन से संबंधित विषयों पर
अपने अपने शोध लिखे हैं। आमतौर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी ये है कि वे सारे शोध विश्वविद्यालयों की पुस्तकालय में ही दर्ज होकर रह जाते हैं। उसका कहीं सामान्य जनता के साथ कोई साक्षात्कार नहीं होता है। श्री रवि प्रकाश टेकचंदानी जी ने ये बीड़ा उठाया कि वे ऐसे सभी शोधार्थियों को साथ लेंगे, एकत्रित करेंगे और उन्हें प्रेरणा देंगे कि वे विभाजन की त्रासदी पर एक बार फिर से एक ऐसा आलेख शोध परक लिखें जो आने वाले समय में कहीं न कहीं दिशा दर्शन देता हो। इस दृष्टि से इसमें हमने ऐसे 10 आलेख जो शोध परक आलेख हैं वो प्रस्तुत किए हैं। ये अकादमिक जगत के लिए एक बहुमूल्य धरोहर इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी आलेख प्रस्तुत किए गए हैं वे तथ्य परक आलेख हैं। हो सकता है भावना की दृष्टि से वे थोड़े कम हो, लेकिन तथ्यों की दृष्टि से वे परिपूर्ण हैं, जो अकादमिक जगत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ भावना का भी प्रश्न है और एक तरफ आंकड़ों का भी प्रश्न है। आप देखते हैं कि लाखों लोग बेघर हो गए या अपना घर छोड़ के दूसरी जगहों पर गए। कई लाख लोगों की जानें गई। महिलाओं पर जो अत्याचार हुए उसकी अपने आप में कहानी बहुत हृदय विदारक है। बच्चों ने जो कुछ झेला वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा आपको कहीं न कहीं हिला देने वाला है, स्पंदित कर देने वाला है। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कि हमें इस बात का स्मरण रहे कि आगे आने वाले भारत को हम कैसे बनाना चाहते हैं, उसकी नींव में क्या है, क्या संकल्प है। एक बार भारत का बंटवारा हुआ है, आगे दोबारा ऐसा फिर न हो। हम सब भारत की एकता के लिए कैसे संकल्पित हो सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने का आज दिवस है। और इस दृष्टि से ये पुस्तक कहीं न कहीं उसमें सहयोग करेगी, आपका मार्गदर्शन कर पाएगी। इस ही मंशा से ये पुस्तक आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। हम आभारी हैं माननीय मीनाक्षी लेखी जी के, हमारी माननीय मंत्री जी की, जिन्होंने आज कई कार्यक्रमों में व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया। माननीय कुलपति प्रोफेसर अमिता देव जी के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारे अत्यंत संक्षिप्त बुलावे पे बहुत शॉर्ट नोटिस पर भी उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। अमिता जी के बारे में मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उनका परिवार भी विभाजन की त्रासदी से गुजरा हुआ परिवार है और उन्होंने जब बातचीत में बताया गुजरांवाला के बारे में तो मुझे लगा कि आज के कार्यक्रम में उनको जरूर हमारे बीच होना चाहिए। तो मैं हमारे दोनों माननीय अतिथियों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत सिर्फ दूसरी दृष्टि से कर रहा हूँ कि ये विभाजन विभीषिका दिवस और इसकी मंशा, आज सुबह भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आपने देखा होगा तो उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि वे उन तमाम लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस विभाजन की विभीषिका में अपना परिवार खोया है या अपनी कहीं न कहीं पूरी की पूरी संपत्ति खोई है। इसमें कहीं समाज में वैमनस्य फैलाने की मंशा नहीं है, इसे समाज को जोड़ने की मंशा है, समाज को एक साथ रखने की मंशा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसा बनाने की मंशा है। इस दृष्टि से हम सभी आज संकल्प करें, ये आज के दिन की शायद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी जोशी जी ने कहा कि इन किस्सों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि विध्वंस के बावजूद बंटवारे का इतिहास सिर्फ हिंसक वारदातों की तारीख नहीं है, इसमें हमदर्दी है, उम्मीद है, इंसानियत के तमाम किरदारों के किस्से हैं। बहुत से लोगों ने पागलपन के उस दौर में भी इंसानियत और दोस्ती को जिंदा बचाए रखा था। 70 साल बाद भी हम बमुश्किल ही इन मानवीय पहलुओं पर गौर फरमाते हैं, मगर हमारे इतिहास के वो पन्ने हैं जो बेहद अहम हैं। इनके जरिए ही हम बंटवारे के असर का सही सही आकलन कर सकेंगे, क्योंकि हम उसे याद रखेंगे तभी वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनेंगे। इसी तरह से हम अपने अतीत को समझ सकेंगे और आगे के लिए सबक ले सकेंगे। अपने विचारों को साझा करने के लिए हम पुस्तक के वित्तीय संपादक प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी को आग्रह करते हैं कि वो आएं और आपके साथ वार्ता करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। इस अति महत्वपूर्ण सभागार में उपस्थित केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री अग्रजा श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, मेरे अग्रज गुरुतुल्य डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, अभी जिनसे सवे एक सामान्य परिचय हुआ, उन्होंने सहर्ष इस
निवेदन को स्वीकार किया। ऐसी डॉक्टर अमिता देव जी मेरे अच्छे मित्र गत 1 वर्ष से बन चुके हैं और ये ऐसा लगता नहीं कि हम 1 वर्ष पुराने मित्र हैं। ऐसे डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो आप यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं IGNCA के, आलेख लेखकों का नाम मैं यहाँ जरूर लेना चाहूँगा। ऐसे डॉक्टर नीलम मित्तल जी, डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी, डॉक्टर पूजा शर्मा जी, डॉक्टर अंकिता अरोड़ा जी, डॉक्टर बरखा शिवा जी, पल्लवी दत्ता जी, मेघा खेमानी जी, ट्विंकल डल जी और यतिन बत्रा जी और रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, मेरा भी आलेख है इसमें। साथियों, आपको ठीक 1 वर्ष पहले इसी हॉल की घटना आपको स्मरण कराता हूं और फिर अपनी बात संक्षेप में आपके सम्मुख रखता हूं। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी दिन, इसी समय और इसी सभागार में आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी ने सिंधी समाज के कुछ वरिष्ठ लोगों को, पंचायत के कुछ सदस्यों को, पंचायत के प्रमुखों को, दिल्ली की लगभग 100 पंचायतों के प्रमुखों को बुलाया था और आजादी के इस अमृत काल में, इस अमृत महोत्सव के दौरान विभाजन की विभीषिका के संदर्भ में यह अपने विचार यहाँ पर उद्धृत किए थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, यह उत्सव का पल नहीं है, यह स्मरण का पल है और ऐसा स्मरण जो हमें शक्ति देता है, जो हमें दृष्टि देता है और बार बार ऐसी गलतियां न करने का एक ऐसी दिशा भी देता है। सब लोग सामान्यतः पूछते हैं कि ऐसे स्मरण, इस प्रकार की विभीषिका का स्मरण क्यों करना। आदरणीय सच्चिदानंद जी ने भी और बहन जो यहाँ पर बोल रही थी उन्होंने भी स्पष्ट किया, रेखांकित किया कि स्मरण के पीछे भाव ये है कि हम आगे वाली पीढ़ियों को ये ट्रांसमिट कर सकें, उनको बता सकें और भविष्य का कहीं कुछ ऐसा सूत्र उसमें मिल जाए कि क्या हम इस खंडित से अखंडता की ओर बढ़ सकें। इसके पीछे भावना ये है। आप लोगों के सम्मुख इस पुस्तक प्रकाशन को लेकर के जो विविध इसमें लेख हैं, अकादमिक भी हैं, लेकिन वो कहानियों को लेकर, उपन्यासों को लेकर, संस्मरणों को लेकर के बहुत अच्छी तरह बुने और बुने गए हैं। उसमें पंजाब की कहानियां हैं, उसमें सिंध की कहानियां हैं, उसमें बंगाल और बांग्लादेश की कहानियां हैं और आप लोगों से आग्रह है कि उस पुस्तक का वाचन करें, पठन करें और अपने दोस्तों से भी इस बात को पहुंचा के देखें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी कुछ दिन पूर्व आप सब लोगों को सूचना ये देना समीचीन लगता है कि सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज के नाम से एक अभी उन्होंने एक सेंटर डेवलप किया है और उस सेंटर के द्वारा भी वो प्रेरणा आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिए गए उद्बोधन के पश्चात है। हमारे प्रेरक पुरुष हैं आदरणीय मोदी जी, जो हम लोगों को निश्चित रूप से यह दिशा देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं कि हम जीवन में अपने किन किन बिंदुओं को लेकर के जीवन यापन करें और आगे बढ़ें। 2 छोटी सी घटनाएं, समय निर्धारित है, उसी अंतराल में अपनी बात कहना चाहूंगा। बात तो 1947 की है, तो आप लोगों के सम्मुख ये प्रश्न भी उठाना चाहता हूं आप लोगों के चिंतन के लिए कि जब देश बढ़ता है स्वतंत्रता के साथ साथ, तो पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़े होते हैं और भारत के दोनों हिस्सों में आधा आधा हिस्सा आता है। लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिसको सिंध क्षेत्र कहा गया है, उसका एक गांव भी इधर नहीं आ पाता है। आप कुछ शोधार्थी यहां पर बैठे हैं, उस कालखंड में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कृपलानी जी होते हैं और कृपलानी जी के अध्यक्ष होते हुए भी एक गांव, एक छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा उसका सीमांत क्षेत्र अगर आप दें, गुजरात के कच्छ से लेकर के और मुनाबाव, जोधपुर और जैसलमेर तक, एक गांव भारत के इस ओर नहीं आ पाता है। ऐसा ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट के साथ होता है। सीमांत गांधी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। बलूचिस्तान के साथ ऐसा होता है। तो क्या उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनका स्मरण आज के दिन उनका नहीं होना चाहिए? मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा इस IGNCA विशिष्ट संस्थान का, आदरणीय राय साहब का, आदरणीय हमारे जोशी साहब का, कि उन्होंने इस पुस्तक के स्वरूप को स्वीकार किया, प्रकाशित किया, आज आप सबके सम्मुख आता है। मैं अपनी मां के 1-2 उदाहरण आपके सम्मुख रखूंगा अति संक्षेप में। 1947 के बाद 1967 में सिंधी भाषा को संविधान में सम्मिलित किया जाता है और 1967 के पश्चात 1977 का वो एक छोटी सी घटना है। अयोध्या में रामनवमी का मेला लगा हुआ है। एक सिंधी भाषी युवक
जिसे डॉक्टर साहब के नाम से जाना जाता है, वो अपने छोटे बच्चे 8 और 10 साल के बच्चे को लेकर के अयोध्या में रामनवमी के दिन स्नान कराने ले जाता है, उसका स्नान कराता है और सीढ़ियों पर उसे बैठा देता है। और वो छोटा सा बालक 8-10 साल का क्या देखता है कि सभी समाज जो वहां पर भीड़ है वो सूर्य की ओर, पूर्व की ओर अर्घ दे रहे हैं, उस ओर दिशा करके दे रहे हैं। एक अकेला शख्स है, अकेला व्यक्ति है जो उल्टा खड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। मैं दूर से कहता हूं कि पापा ये क्या कर रहे हैं, सब लोग उधर देख रहे हैं, आप भी उधर देखिए। वो इशारा करते हैं कि बेटा आप रुको, मैं आता हूँ। वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्नान करके आते हैं, मुझे गोद में बैठाते हैं और कहते हैं बेटा आज मुझे सिंध याद आ गया है। आज उस रामनवमी के पल में सरयू में स्नान करते हुए उनको अपनी वो सिंध भूमि, अपने सिंध स्थान याद आ गया है। और वो कहते हैं कि काश कुछ ऐसा मिरेकल हो कि सरयू का जल और सिंधु का जल मिले और विभाजन समाप्त हो जाए। ये जो पीड़ाएं हैं ये उस समाज ने जिससे भोगी है, वो पंजाब का समाज हो, बंगाल का समाज हो, उर्दू भाषी समाज हो या जो सिंधी भाषी समाज हो, उससे होगा। दूसरी एक छोटी सी घटना आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। देश अपनी आजादी का 50 वर्ष मना रहा होता है। कुछ पत्रकार स्थानीय अयोध्या के ही मेरी माँ के पास आते हैं और प्रश्न करते हैं, बड़ा अजीब सा प्रश्न करते हैं। पत्रकारों का स्वभाव है अजीब सा प्रश्न करना। और वो प्रश्न करते हैं कि आप तो बहुत ही इस समय धन धान्य से परिपूर्ण है, संपन्न है, फिर आप तो देश की इस सिंध को स्मरण क्यों करते हैं? माँ ने जो उत्तर दिया उसकी 4 पंक्ति मैंने लिखी है, उसके बाद अपनी बात पूरी करता हूं। उन्होंने उस पत्रकार से उत्पन्न दिया, किसी सिंधन के गर्भ से जन्म लेकर के तो देखो, करते हो याद जश्न आजादी को तुम साल दर साल, 47 की काली रात भी याद करके तो देखो, और चीख खून बलात्कार बिछो खुद ब खुद दिख जाएगा, किसी विस्थापित की आंख में झांक करके तो देखो। और कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए, कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए, अपने मोहल्ले को जरा छोड़ करके तो देखो और बिछो के दर्द का एहसास अभी हो जाएगा, अपनी माँ से 2 पल जुदा हो करके तो देखो। और उठाते हो भेजा सवाल, राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो। कुछ लोग ऐसा आचरण पिछले दिनों करते हैं। उठाते हो भेजा सवाल, राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो, नहीं मिलेगा सिंधियों सा बलिदान, खोज करके तो देखो, और सिंधियों की देशभक्ति व तप का अनुभव हो जाएगा, किसी सिंधन के गर्भ से जन्म लेकर के तो देखो। ये जो भावना है मित्रों, ये उस आजादी के आंदोलन में जिस समाज ने, उस समाज को पता ही नहीं था कि हम जिस आजादी के लिए युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाने वाले हैं, आने वाले दिनों में, आने वाली तारीख में, उस 14 अगस्त को वो देश हमारा ही नहीं रह जाता है। कितना आश्चर्य होता है जब उस समाज को रिफ्यूजी कहा जाता है। प्लीज कहना बंद करिए, ये रिफ्यूजी समाज नहीं है, वो अखंड भारत का समाज था, उसका अंग था और आज भी इधर रह रहा है, तो अखंड भारत का ही वो समाज है। इस नरेटिव्स को बदलने की जरूरत है इसको। आज बस इतना ही। आप लोगों ने बहुत अवसर दिया, समय दिया, पुस्तक विमोचन के लिए आप लोग यहाँ पर पधारे। पुनः आप सभी लोगों को प्रणाम अर्पित करता हूँ। कुछ बिंदु आज के लिए छोड़ता हूँ, फिर कभी मिलेंगे, फिर बातें होंगी और कुछ अगले बिंदुओं पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सच कहा है आपने, जब भी हम आज़ादी का जश्न मनाने बैठते हैं, बंटवारे का दर्द उभर आता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला पन्ना है बंटवारा, जिसकी वजह से भारत के टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान ने अपना हिस्सा गंवा दिया। इसलिए इस घटना का राजनीतिक इतिहास तो याद रखा जाता है, मगर बंटवारे के मानवीय तजुर्बे, इंसानी तकलीफ के वो किस्से हमेशा ही दफन करने की कोशिश होती रहती है। लोगों को कुछ बातें और घटनाएं याद रखने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनसे वो दर्द या खुशी बांट सके, वो किससे साझा कर सके। लेकिन वर्षों से हम जैसे लोग जिन्होंने बंटवारे का दर्द नहीं झेला था, वो ये किस्से सुनने को राजी नहीं है। हम अपने माँ बाप या दादा दादी से वो किस्से सुनने में दिलचस्पी ही नहीं लेते। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार की महिलाओं और बच्चों को अपने हाथों से मार डाला ताकि वो पागलपन का शिकार ना हो। आखिर हम ऐसे हिंसक बातों को कैसे याद रखें? कौन इस बारे में बात करना चाहेगा? ऐसे कई सवाल सामने आते हैं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमिता देव, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन से हम आग्रह करते हैं कि मैम यहाँ आकर अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं।
Namaskar. Enigmatic personality, chief guest, Shrimati Meenakshi Ji Lekhi, Union Minister of State and External Affairs and Culture, renowned and distinguished editor, Dr. Sachinanand Joshi, Member Secretary, IGNCA, distinguished Professor Ravi Prakash Tekchandani, Director, NCPSL, illustrious Professor K. Anil Kumar, IGNCA, professors, artists, research scholars, ladies and gentlemen. It's indeed my proud privilege and honor to be here as a guest of honor to be a part of this Partition Remembrance Day with the theme of Tales of Displacement, Horror, Negotiation and Reconciliation. The remembrance of this day was witnessed today at my own university called Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, IGDTW, with the complete support of Indira Gandhi National Center for the Arts. They have been kind enough to put up the exhibition at my own university, which witnessed a complete enthusiasm among the young girls to see and go through all the things which were displayed there in a meticulous manner. Also, the Remembrance of Partition Day was witnessed in the morning at Dharashikha Library, Delhi, where various freedom fighters presented their narrative of partition before Honorable Minister Shri Hardeep Singh Puri, Minister of Petroleum and Natural Gas, and Shrimati Sonal Man Singh, Indian classical dancer, Member of Parliament, Rajya Sabha. The partition of India, 1947, was a significant historical event that resulted in creation of two independent nations, India and Pakistan. Driven by religion and political tensions, the partition led to mass migration, violence, loss of life. The borders were drawn along religion lines. The event had far-reaching consequences for the region, shaping its political, societal, and international relations for decades to come. Why to remember this day? I personally feel it is very pertinent to document the events related to partition so that remembrance is transferred to the future generation and the history may not repeat itself. I also feel that the shared grief when such partitions are expressed, since I've been hearing similar stories of partition from my own father, who is 90 years old, and from my mother, who tell me 1947, when they had to leave some of their brother and sister, and they went back, could not get anything. They told me when they came back, there they were having a splendid life, almost 20 rooms, and one room was having Krishna Murti, where they used to do prayers in the morning by pouring milk and other things. And when they came here, they took a shelter in one of the camp called the Kingsway camp, where food was given, maybe bare minimum food. They decided not to eat the food. They used to go to railway station, sell that food, and take money out of it. The mass migration of people across the newly drawn borders led to immense suffering. These are the stories when we learn from our heart. It's just a story told by my own parents, which is just one family. And I think about those millions of people who have undergone such violence, such rape, and other things which have destroyed the families. That's the reason I think it's very, very pertinent to remember this day, so that at least the future generations or the people who have not heard of these stories, it should stay in their hearts somewhere and our country remains safe and this history is not repeated. I would like to quote, "The partition of India stands as a solemn reminder of the devastating consequences that can arise when humanity's shared bonds are overshadowed by the walls of division," unquote. I heartily congratulate the distinguished editor, Dr. Sachinanand Joshi, Member Secretary, IGNCA, for his remarkable contribution, which has come up at the right time. I am delighted to be part of this book launch, Revisiting Partition,
Tales of Displacement, Horror, Negotiation and Reconciliation by the editor. The contribution of this book have outpoured the heartfelt experience of survivors. Thank you very much for the patient hearing. Thank you. धन्यवाद मैम। एक दिन हुआ एक ऐलान, लिया गया एक फैसला, खींच दी एक लाइन और बढ़ गया हवा। विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ की गई हिंसा, क्या हमें सचमुच वो आजादी मिल गई जो हम चाहते थे? जो कीमत हमने ब्रिटिश शासन से अपनी आजादी के लिए चुकाई, यह विभाजन इतिहास की सबसे विनाशकारी और दर्दनाक घटनाओं में से एक साबित हुआ, जिसने लाखों लोगों की नियति का फैसला किया, लेकिन जिसके बारे में सबसे कम लिखा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से अब युवा पीढ़ी ने इस पर बात करनी शुरू की है। शायद हम मिलकर उस दर्द को बांट सकें। हम आग्रह करते हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर मीनाक्षी लेखी जी से कि वो हमें अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी, श्रीमती अमिता देव जी, प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, अनिल जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन। मैं जब अपने से पूर्व वक्ताओं की बातें सुन रही थी तो मेरा मन एक तो जो एकेडमिक पढ़ाई लिखाई वाली चीज है उस पर गया, दूसरा अपने जो परिवार के व्यक्तिगत अनुभव हैं उन पर गया, और उसमें से कुछ स्थितियां जो मैंने सुनी, बचपन से सुनी, देखी, तो मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। तो जहां तक एकेडमिक चीजों की बात है तो इस पुस्तक में जो हॉरर्स रिविजिटिंग पार्टीशन का है उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन जो स्लाइड्स हैं, जो एग्जीबिशन है, उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम जितने लोग हैं सब यही पढ़े लिखे लोग हैं, मगर कभी भी हमें ये नहीं बताया गया कि भारत को आजादी मिली ही नहीं। What India received was a dominion status. That too was a negotiation of partition. Now tell me, how good is that? कि जिन लोगों को महान बना दिया गया आजादी के बाद, वो लोग तो देखा जाए तो आजादी की लड़ाई में कुर्बान होने वाले जो वीर वीरांगनाएं थे उनको उनके साथ ही न्याय नहीं कर पाए और डोमिनियन स्टेटस लेकर बैठ गए, और वो भी किस कीमत पर? विभाजन की कीमत पर। विभाजन की कीमत पर डोमिनियन स्टेटस। इमेजिन, आई डोंट नो हाउ आई वुड हैव रिएक्टेड or I may have reacted in my previous life after hearing this horror. मतलब मुझे तो लगता है अगर मेरा इससे पहले का जन्म इंसान का ही था और भारत में ही था तो मेरा रिएक्शन लेवल कुछ और ही होता, और आज भी वही रिएक्शन लेवल है कि जब आप ये सुनते हैं कि भाई आपको डोमिनियन स्टेटस दिया गया 15 अगस्त को, वो भी विभाजन की कीमत पर, और इतिहास के पन्नों से उसको गायब कर दिया गया और हम सबको कह दिया गया स्वतंत्रता दिवस है, और इसके बदले में भारत ने क्या क्या कीमत अदा की, पैसा वैसा ये भी कई चीजें थी, वो हम अदा करते रहे, जिसके बारे में जिक्र होना चाहिए। एक सेपरेट उसके ऊपर एक एकेडमिक रिसर्च भी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पार्टीशन और मॉडर्न इंडिया के इतिहास पर रिसर्च को स्वीकारा ही है तो मैं कहूँगी खाली डोमिनियन स्टेटस के ऊपर बाकायदा रिसर्च, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। दूसरा, वो बातें जो कुछ लिखी हैं, कुछ अनलिखी हैं और कुछ लिखकर हटा दी गई हैं, उनमें एक लाहौर के अंदर हीरा मंडी है, और वो हीरा मंडी जो है तवाइफ खाना है। जो रिकॉर्ड्स कहते हैं
रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 55,000, पाकिस्तानी रिकॉर्ड कहता है 55,000 से अधिक पार्टीशन के बाद जो औरतें थी उनको वहां पहुंचाया गया था। मुझे लगता है याद रखने जैसी चीजें हैं। 12,000 एबडक्ट की गई, ये रिकॉर्ड कहता है। कई हजार कुएं में कूद के मर गई, ये रिकॉर्ड कहता है। कई बेटियों को उनके पिता ने मार दिया, ये रिकॉर्ड कहता है। भाइयों ने मार दिया क्योंकि उनके बच के वहां से निकलने के कोई चांस नहीं थे। और उसी के साथ मुझे याद आती है जो एक राइटिंग में भी है, परंपरा जौहर की। तो लोग आज भी उसको, खासतौर पे इतनी सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं और आज हम महिला अधिकार और एम्पावरमेंट और तमाम बातें करते हैं, मगर भारतीय परिप्रेक्ष्य और सभ्यता संस्कृति के मापदंड से मैंने कई लोगों को सुना रही, भाई क्यों ही ये सब करना था, क्यों ही मरना होता है, आप सेक्स स्लेव बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि जो भारतीय परंपरा है, समाज है, उसमें महिलाओं का ऐसा स्थान है और उनकी ऐसी मानसिकता है कि वो किस तरीके की स्लेवरी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपनी जान की बाजी लगाना, कुर्बानी देने को कई बार बेहतर समझेगा। और उसी का नतीजा है कि ये सब चीजें भी हमारे इतिहास का हिस्सा है। अब मैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा दो स्लाइड्स हैं जो डायरेक्टली मेरी फैमिली से रिलेटेड है। एक है कि सबसे बड़ा जो विस्थापन है वो मिंट कुमरी से हुआ। मतलब मैं जानबूझ के मिंट कुमरी बोल रही हूँ, वो आप अंग्रेजी में उसको मोंटगोमेट्री लिखते हैं क्योंकि वो एक नाम था एक एडमिनिस्ट्रेटर का, लेकिन पंजाबी जिस तरीके से बोलते हैं वो मिंट कुमरी बोलते हैं। तो मेरे परिवार में मैं अपनी दादी की कहानियां सुन कर बड़ी हुई, जिसमें से दो बातें वो स्पेसिफिकली मुझे अभी भी याद है कि मेरे पिताजी बहुत छोटे थे और वहां पर मिंट कुमरी में एक्सकेवेशन चल रहा था, हड़प्पा जिसको हम कहते हैं। तो उस एक्सकेवेशन में मेरे पिताजी शायद बहुत छोटे घर के बच्चे थे, लेकिन अमीर घर था, तो अपना चांदी के बर्तन ले जाके वो भी एक्सकेवेशन का खेल खेलते थे कि वो भी एक्सकेवेशन के लिए गए और बर्तन वहीं छोड़ के आ जाते थे। तो जो काश्तकार है उनमें से कोई बर्तन ला के वापस दे देता था कि भाई बहन जी आज वो बच्चा फिर ये चांदी के बर्तन वहां छोड़ा है। तो बच्चे को तो चांदी पीतल तो कुछ अंदाजा नहीं, उसके लिए बर्तन है, खोदने के लिए एक परात चाहिए, एक चम्मच चाहिए, बाल्टी चाहिए, उठा के चल पड़ो। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसके बाद क्या हालात हुए। और वो क्योंकि कई 100 एकड़ में जमीन थी, तो वो घोड़ा लेकर, सुबह उनका काम होता था कि सर्दियों में गर्म दूध और गर्मियों में छाछ और बहुत सारी परौंठियां बनाना। जो काश्तकार काम पे जाएगा पहले वो परौंठी और दूध या परौंठी और लस्सी लेके घर से खा पी कर जाएगा। आदमी लोग आड़त का काम करते थे, वो बाजार चले जाएंगे और उसके बाद वो जब आदमी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, तो वो अपना घोड़े पे जाकर चक्कर लगा के आती थी, खेती का मुआयना करके कि भाई सब काम ठीक ठाक चल रहा है, बीज डल गए, रोपण हुआ नहीं हुआ, और वापस आती थी। तो यानी इतनी आजादी थी महिलाओं को कि वो घुड़सवारी कर सके, घर परिवार की देखरेख करे, लेकिन बाकी चीजें भी वो कर सके। और एक बराबर की जिम्मेवारी होती थी बिजनेस चलाने की भी, क्योंकि जमीन की देखरेख कर रहे हैं तो मतलब आप पावरफुल हैं परिवारों में। और वापस आना, मैं अब इसको सोशियोलॉजिकली एंथ्रोपोलॉजिकली रिलेट कर रही हूँ। जितना उन्होंने बताया उतना ही उन्होंने यही बताया था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा विस्थापन हुआ वो मिंट कुमरी से हुआ, ये मुझे इस स्लाइड के माध्यम से पता चला। और जो कई 100 एकड़ जमीनों के मालिक थे वो यहाँ पर सब कुछ छोड़ के आ गए। और हमारे परिवारों में कभी आप नोटिस कीजिएगा, जब आपने रेलवे स्टेशन की बात सुनाई तो मैं उससे रिलेट करके आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो बचपन में कुछ बातें समझ नहीं आती पर बड़े होकर आपको समझ आती है। तो बचपन में
मुझे कभी समझ नहीं आया कि हर 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में मेरी दादी रात को उठ जाती थी, जोर जोर से दहाड़े मारती थी, और जो पंजाबी है उनको स्यापा वर्ड समझ आएगा, स्यापे जैसी स्थिति होती थी, छाती पीटती थी जोर जोर से। तो बच्चे जो हैं 2, ढाई, 3, 3:30 बजे उठेंगे, 6, 6:30 स्कूल जाना है, तो उनका इरिटेशन लेवल कुछ और होता है। हम भी उन्हीं में से थे कि क्या माता जी को फिर क्या हो गया, माता जी को फिर क्या हो गया, हर बार सेम स्टोरी, सेम कहानी। तो और घर के अंदर भी हम लोग जूते पहनते थे, चप्पल, मतलब पंजाबी घरों में आप कभी नोटिस करना, वो बाहर अंदर का चक्कर नहीं होता, वो जूते घर के अंदर भी पहनते हैं। बाकी घरों में जूते अलाउड नहीं होते। तो ये मैं इस साइड और उस साइड का विभाजन आपको बता रही हूँ, कल्चरल डिविजन। तो बड़ी डांट पड़ी होगी, हमें भी पड़ी होगी कि जूती नहीं पाई, घूम टुर रही है, ये सब वही सुन सुन के बड़े हुए होंगे। और वो जब रात को उठती थी, वो एक ही बात कहती थी, बार बार, सालों दर साल वो एक ही बात कहती थी। वो कहती थी, मैं जूती भी नहीं पाई सी, बच्चियां नू कुछड़ च लैके नट गए, which means I could not wear my slippers. I carried the children in my arms and ran. Now, a woman who came from a background of riding horses, children's spoiled enough to take the silver utensils out of the house, not being able to wear slippers, picked up the kids and ran like mob. मतलब वो जो सबसे बड़ा विस्थापन है, उसी काफिले का शायद एक हिस्सा, जिसने एक पुल पार करने में 36 घंटे लगाए हो। क्या बीती होगी। और ये फर्स्ट जनरेशन जो इतने मतलब वेल क्वालिफाइड, ठीक ठाक लोग थे, इधर आए और सड़कों पर पड़े, सड़कों पर बैठे। और इस क्षेत्र के अंदर, मतलब मैं तो भारत भूमि को, इस हिस्से को धन्यवाद देती हूँ आज तक कि एक्सेप्टेंस लेवल, ठीक है, रिफ्यूजी शब्द इस्तेमाल जरूर हुआ होगा, लेकिन भारत का ये हिस्सा, एक वो हिस्सा जो छूट गया, इस भारत के हिस्से ने हमको पूरी तरीके से अपनाया। नहीं तो किस हालात में हम लोग आए थे, और जिस हालात में आए थे, एक व्यक्ति चोर डाकू नहीं बना जी, एक व्यक्ति टेररिस्ट नहीं बना जो बन सकता था। इतनी बुराई देखने के बाद, झेलने के बाद, जो औरतों को कुएं में कूदते हुए देखा हो, लोगों को मरते हुए देखा हो, बाप को बच्चे से बिछड़ते देखा हो, आंखों के आगे छोटे बच्चों ने कत्ल देखा, अपने माँ बाप का कत्ल देखा हो, कुछ बच्चे पेट में हों जिनके बाद में जन्म लिया हो पिता की मृत्यु के बाद, एक बहुत कुछ देखने के बाद भी उन सब चीजों को कभी कभी याद घर परिवार में छोटी बहुत बातों में जरूर किया। लेकिन एक व्यक्ति, रिकॉर्ड पर मैं ये बात कह रही हूँ, चोर डाकू कत्ल करने वाला उग्रवादी कुछ नहीं बना। ये रेजिलियंस है और ये कैरेक्टर है। इसीलिए मैं जो, मतलब आई एम श्योर बाकी हिस्सों में भी ये कैरेक्टर है, पर जो मैं पंजाबी कैरेक्टर की बात करती हूँ वो यही बात करती हूँ कि हम लोग मेहनत से नहीं डरने वाले लोग हैं, और कोई काम हम लोगों के लिए छोटा बड़ा नहीं है, जो आज तक का भी कैरेक्टर है। आप कुछ भी हो, वो वाइस वीसी होंगी, लेकिन घर जाके अगर झाड़ू भी लगाना है तो लगाएंगी ना, सड़क भी साफ करनी है तो कर देंगी। वो बड़ा छोटा जाति पाति ये बातें नहीं मानते जी। कोई आएगा, कोई करेगा, फॉरगेट इट, डस्टर दो, मैं साफ करती हूँ। ये भी इसका कैरेक्टर है। और मूल में जो अथाह मेहनत करने वाली बात है, जो परिश्रम वाली बात है, वो इस कैरेक्टर का हिस्सा है। और टू स्टे ऑन द राइट पाथ नो मैटर व्हाट चैलेंजेस आर, कुछ भी चैलेंज हो, आप भूखा मार दोगे, ठीक है जी, भूखे रह लेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, पटे पहन लेंगे, इज्जत के साथ रहेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये भी कैरेक्टर है। और मुझे याद है, ये बचपन में मेरे पिताजी के मुंह से मैंने सुना, पंजाबी में बोलते थे, कभी हिंदी में बोलते थे कि हाथ ऐसे करना सीखो, ऐसे नहीं करना किसी के आगे, कभी नहीं करना। मेरी माँ कहती थी, फटा मंजूर है भाई, हाथ नहीं मांगना किसी से, मेहनत कर लेंगे।
और कुछ बातें मुझे बाद में समझ आई, क्योंकि जब मैंने वकालत ज्वाइन की तो दरियागंज में हमारे सीनियर का ऑफिस और घर था, वो पुराने दिल्ली वाले थे। तो वो कहते थे कि हमारे घरों में, और मुझे जूते चप्पल वाली बात तब समझ आई, मुझे उससे पहले समझ नहीं आई क्योंकि सो नॉर्मल। वो कहते थे कि हमारे यहाँ जो परिवार में औरतें, वो तो सब नंगे पैर घूमते थे चांदनी चौक वगैरह के क्षेत्र में, और अमीर लोग थे, कोई मतलब ऐसा नहीं कल्चर था नंगे पैर घूमने का, वो सब नंगे पैर घूमते थे। कहते हैं हमारी जो औरतें थी वो कहती थी ये देखो ये रिफ्यूजी आ गई है रेलवे स्टेशन पे। कहते वो अच्छी खासी लंबी चौड़ी सुंदर पढ़ी लिखी टाइप औरतें थी, लेकिन परिवारों की देखरेख करनी थी, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सामान भी बेचने का काम किया। अपने परिवार को सस्टेन करने के लिए उन्होंने सामान बेचने का काम भी किया। और यहाँ की जो औरतें थी उन्हें ये बात समझ नहीं आती थी कि कहने को तो ये बेचारे हैं, ये तो रिफ्यूजी टाइप लोग हैं, लेकिन जूतियां पहन के घूमती हैं। That's the impression, those are the stories and those are the narrations. ये 47 का हाल ये था कि भाई अब आप किसी तहसीलदार सूबेदार वगैरह वगैरह के परिवार से हैं, जूते चप्पल आर पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, तो इसलिए आपको दिखेगा, कभी भी नोटिस करना, पंजाबी सिख सिंधी ये कोई भी हो, ये सब एक ही कौम के लोग हैं। तो कपड़ा वपड़ा खाना पीना वो पूरा शो ऑफ रहता है, कितने ही गरीब क्यों ना हो, कितनी तकलीफ में हो, मगर ढंग से रहना एक उनके कैरेक्टर का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ देयर लिविंग। और मुझे लगता है दिल्ली का जो कल्चर है वो पंजाबी ही है, नो मैटर कोई बिहार से रहता है, कोई किधर से आता है, उड़ीसा से आता है, किधर से भी आता हो, पर जो कल्चर है वो दिल्ली का, वो सब पंजाबी ही है। सब शो ऑफ से ढंग के कपड़े पहनो, खाना खाओ, पार्टी करो, ठीक से रहो। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है वो ये है कि जो आज पटियाला हाउस है, ये पटियाला हाउस प्री पार्टीशन इवन पोस्ट पार्टीशन भी लाहौर हाई कोर्ट का प्यूनी बेंच होता था। सो दिस वाज हाई कोर्ट, पटियाला हाउस यूज्ड टू बी द हाई कोर्ट एंड दिस इज द प्यूनी बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सब पंजाब के रिकॉर्ड्स में आता था, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी पंजाब के होते थे। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दिल्ली, एंड दिल्ली वाज वेरी मच पार्ट ऑफ the other side of India which used to be. And sometimes I say कि कभी कभी नाराज होती तो मैं कहती क्या यार पाकिस्तान बना दिया तुम लोगों ने। तो the fact is the other story which I very much relate to, and I'm going to give some piece of history which people may not relate to or agree to. इसमें एक है डीएवी स्कूल के छात्र मारे गए, डीएवी कॉलेज के 10 छात्र 1947 just before the partition. So my father-in-law was a student leader of Lahore University, and he towards the end, because उनको गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल दिया था फ्रीडम स्ट्रगल के चक्कर में, तो डीएवी कॉलेज ने उनको re-admission दिया था। So he was in DAV college at that point in time. So and he was a president of student congress होती थी उस टाइम पर, एक ही पार्टी होती थी, स्टूडेंट कांग्रेस होती थी। तो वो दौड़ते हुए जब ये राइटिंग हुई, ये सब कुछ चल रहा था, वो दौड़ते हुए, क्योंकि उनके नेता तो नेहरू जी ही थे, स्टूडेंट कांग्रेस का तो नेता तो नेहरू ही रहेंगे, कांग्रेस के नेता। दौड़ते हुए वो उनके पास गए और उन्होंने कहा, वो एक ट्रिप पे थे, वहां घूम रहे थे, कि लाहौर जल रहा है, कुछ कीजिए। एंड till he died he used to remember this, and he said तो मैं क्या करूं? And he was very sort of charged up and he said तो कुछ जल मरो, he said that. But that's the story I relate to when I saw that 10 students had been killed during that, and I suddenly recalled that Dad used to say this,
when as a student leader. He was the president of the university student congress. My mother-in-law was the secretary, and all this, their love story was happening at that time, 47, and before and after that, 1950 they got married, 51. So the fact is that so many mistakes were made at that point in time. And this concession which came to us was not really a freedom, but a dominion status. That too at the cost of division of the country. That too at the cost when millions were killed and millions were killed. A few, close to 100 million or 10 million people. 10 million. They were, we have called it migration, but जो हिंदी का शब्द है विस्थापित, migration थोड़ा ही थी. This is complete displacement. This is hardly migration. And this displacement needs to be given the word displacement. And this is how displacement happened. But the beauty of the whole thing is that this part of the country accepted us all. We all worked very hard. First generation would have suffered like hell. Second generation also would have suffered, but would have made some inroads. And third generation, by my generation, we got little normalized. And the next generation probably knows nothing of the pain which our ancestors have gone through. So today is the right day to remember all the pains that our ancestors have gone through, to make this country what this country is, to bring prosperity all around, and to bring the narrative and the story which people like us went through. I mean, in a lighter way, but a very serious note, I said, मेरे पुरखे मर गए यार. Generation after generation protecting those lands. सारा invasion उधर से होता था. Takshila was funded by people like us. Traders fund करते थे उसको. सरकारें नहीं फंड करती थी, राजा थोड़ा ही फंड करता था. मर गई generations उस जमीन को बचाने के लिए. By one signature you gave it up. How? But this is the pain which civilizationally we should remember, that this is what happens on the borders and on our borderland, and thus that consciousness towards one India has to be there. तो जब प्रधानमंत्री जी एक भारत और श्रेष्ठ भारत कहते हैं, वो मात्र नारा नहीं है. भारत की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए एकता और अखंडता भी जरूरी है, और उस एकता अखंडता के लिए अपने बॉर्डर्स की निगरानी और बॉर्डर पे जो हमारे सेनानी बैठे हैं और चौकन्नापन, उससे हटने की जरूरत नहीं है. वो एक कुछ कहते हैं ना, शेर है कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है. तो ये जो लम्हों की खता थी और वो सदियों की जो हमारी रेजिलियंस थी और काम था, उसको चौपट कर दिया कुछ लम्हों ने. इसलिए इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद. हम मंच से एक आग्रह करना चाहेंगे. इस पुस्तक के अंदर जितने भी शोधार्थियों के शोध पत्रों को संकलित किया गया है, वो सभी हमारे बीच उपस्थित हैं, और उन सबका आग्रह है कि आप सभी के साथ वो एक फोटो लेना चाहते हैं. तो हम उन सभी शोधार्थियों से कहेंगे कि वो मंच पर आएं. और हम धन्यवाद करना चाहेंगे सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें इस विषय पर बात करने के लिए प्रयास किया कि हम आगे आएं और इस पे बातचीत करें. हम धन्यवाद करना चाहेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय साहब का, जिनके मार्गदर्शन से हम इन कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं. हमारी अपनी
मंत्री विदेश एवं संस्कृति मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्रीमती अनीता देव जी का, पुस्तक के संपादक एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का, पुस्तक के द्वितीय संपादक एवं निदेशक राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद प्रोफेसर रवि प्रकाश चंदानी जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। जनपदा संपदा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के अनिल कुमार जी एवं समस्त जनपद संपदा विभाग की टीम का, हमारी पब्लिकेशन यूनिट का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की निदेशक डॉक्टर प्रियंका झा मैम का, पब्लिकेशन यूनिट जिन्होंने हमारे साथ इस पुस्तक पर बहुत मेहनत की, एस सेक्शन का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का और हमारे मीडिया यूनिट का जिन्होंने हर तरीके से हमें टेक्निकल सपोर्ट दिया, और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का जिन्होंने इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारा साथ दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की मीडिया यूनिट स्क्रीनिंग हो रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मीडिया सेंटर ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, फिल्म कंपटीशन, जिसकी एक फिल्म का स्क्रीनिंग अभी यहाँ पर होने जा रहा है, जो फिल्म बहुत छोटी है और आप उसे देखें कि युवा पीढ़ी कैसा सोचती है। इसके बाद हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने सेंटर पार्क कनॉट प्लेस में एक मौन पदयात्रा का आयोजन किया है। आप सभी उस पदयात्रा में हमारे साथ शामिल हो। यहाँ पर फिल्म के बाद हम सभी लोग कनॉट प्लेस की तरफ चल पड़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का।